आपके 4% जो रिजर्वेशन कांग्रेस पार्टी ने दिया हुआ है, 4% रिजर्वेशन मोदी जी ने निकालने वाले हैं। अगर खुदा ना खास्ता लाखों बार वो बिल कानून बनेगा तो फिर हमारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, दरगाहें छीन ली जाएंगी, कब्रिस्तान को खत्म कर दिया जाएगा। हमें 6-8 एमएलए चाहिए, और जिस दिन अखिलेश पर 8 एमएलए होंगे ना, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया मुसलमानों को साथ। Ladies and gentlemen, the Congress and Rahul Gandhi talks of a mohabbat ki dukaan. What mohabbat ki dukaan? Where you have dhamki, you have this entire narrative being created that Muslimans of the country are in danger. You know, Hindus and Sanatan can be vilified day in and day out. There is no problem. And then there is also an attempt to divide the people, to divide the entire country. Because otherwise there is no other way out that the Congress and the likes of Akhilesh Yadav, the likes of Owaisi can win an election. Because they just do not have an answer to the katenge to batenge narrative that has been put forward by Yogi Adityanath now for the longest time. We have some big elections in Maharashtra. There has been a big election underway in Jharkhand where the first phase of polling has concluded with a bumper voter turnout. So that tells you that people are responding to that call. People say hum nahi batne wale. Yogi Adityanath has said that time and again. But then in Congress's and Rahul's mohabbat ki dukaan, what do you get? You get dhamki. You also have leaders like Abu Azmi, जो कहते हैं बस कुछ और हमारे साथ MLAs आ जाए फिर देखिए हम क्या कर लेंगे. To also the fear mongering, the hate speech of the likes of Owaisi. To Akhilesh Yadav and his PDA. To Rahul Gandhi wanting to say कि divide कर देते हैं सबको. To also the Karnataka Congress that has a plan to give a Muslim quota. But whose quota will they snatch? That is the question. So this entire dar ka mahal that remember the Congress started to create in the run up to the 2024 Lok Sabha election when they told you desh khatre mein hai, संविधान खतरे में है, democracy खतरे में है, मुसलमान खतरे में है. Everything came falling flat. So Rahul Gandhi has a plan B. He has a bigger and a more dangerous ploy today at hand, which is to divide everyone. Because divide and rule is the only way that the Congress believes that they can win these elections. Is that so? How will the BJP respond is what people have been asking. The BJP has learned their lesson from the loss, even if you call that a loss, where they got stuck at a 240. Because that is why today Yogi Adityanath, the RSS, Prime Minister Modi all say कि कटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, safe रहेंगे, is what the Prime Minister says. So who today wants a dar ka mahal in the country and who today does not want all of us, as in the countrymen, to stay united? Let's say good evening to our panel of guests joining us. We have Dr. Kaushal Kant Mishra, who represents the BJP. Mithun Vijay Kumar is a political analyst with us on the show. We also have IP Singh Saab, who's the national spokesperson of the SP. We are waiting for Suman C. Raman to join us. And Haji Baraduddin Rangreji is spokesperson of the AIMIM. So IP Singh Saab, let's begin by asking you कि ये डर का माहौल, डर दिखाकर बहुत आपने इलेक्शन सर लड़े तो हैं, लेकिन क्या जीत पाए हैं सर? कहा जाता है डर के आगे जीत है, तो आप क्यों इतना डरते हैं, क्यों इतना डराते हैं सर? देश में इतनी भय और आतंक का माहौल योगी आदित्यनाथ और बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं ने, गिरिराज सिंह जैसे लोगों ने उत्पन्न कर दिया है कि देश की सर्वोच्च अदालत ने आज जो हथौड़ा मारा है, जो नौकरशाही को हिदायत दी है कि एक दायरे में रहिए, फैसला करना, अगर फैसला आपको लेना है तो कार्यपालिका नहीं न्यायपालिका फैसला लेगी। बुलडोजर की जो राजनीति थी, इनकाउंटर्स की जो राजनीति थी उत्तर प्रदेश और पूरे देश में जहां भी बीजेपी की सरकारें हैं, उस पर
एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को वार्निंग दिया है। मैं समझता हूं कि बटेंगे और तो कटेंगे, ऐसे जो जुमले उछाले गए हैं, जब चुनाव आता है हिंदू खतरे में पड़ जाता है, हिंदू मुसलमान शुरू हो जाता है, आबादी घटने लगती है, वो कपड़ों से पहचाने जाने लगते हैं, बेटियां सुरक्षित हो जाती हैं। सवाल यह है कि गिद्धों की तरह आज श्री हेमंत सोरेन जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जैसे डांगर मरता है, गिद्ध और कौवे मर्राते हैं, उसी तरह 5 वर्षों तक उस दलित नेता ने किस तरह अपनी सरकार को बचा के रखा, किस तरह से उस नेता को सलाखों के पीछे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने झूठे मनगढ़ंत मुकदमों में सलाखों के पीछे एक आदिवासी ये युवा मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। कहा गया कि उनकी पत्नी मुख्यमंत्री होगी, लेकिन उन्होंने जो वरिष्ठ नेता थे उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। आज 43 सीटों पर झारखंड में जो चुनाव हुआ, अब विश्वास के साथ देखा जाए तो 2/3 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन जीतने जा रहा है। इस तरह के हालात सिंह साहब बढ़िया भाषण देते हैं सर। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, बाकी तमाम बातों पर आपने अपनी राय रखी। अच्छी बात है, राय रखनी चाहिए, डेमोक्रेसी। हम तो कहीं नहीं कहते कि देश खतरे में है सर, ये नेता लोग ही कहते हैं कि ये खतरे में है, कभी संविधान खतरे में है, हमारी डेमोक्रेसी खतरे में है, उसके बाद मुसलमान खतरे में है। लगातार ओवैसी साहब वकफ की बात आती है, वो कहते हैं हमारी मस्जिदों को छीन लिया जाएगा, और आप कहते हैं कि हिंदू कहां खतरे में। आपको तस्वीरें बांग्लादेश की नजर नहीं आती है, कनाडा की नजर नहीं आती है, बट क्योंकि आपने सवाल उठाया है, एंड आई एम आल्सो सेइंग गुड इवनिंग टू सुमंत नाउ हु इज विद अस एंड वी सी हिम ऑन आवर स्क्रीन्स। बट कौशल, हाउ वुड यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू व्हाट यू हैव जस्ट हर्ड फ्रॉम द एसपी कि डर का माहौल ये नहीं बनाते, आप बनाते हैं जानबूझकर, क्योंकि दिस विक्टिमहुड इज द ओनली थिंग दैट द बीजेपी थ्राइव्स ऑन। कौशल, are you guilty of creating panic and fear? दीप्ति, ये भय का माहौल तब नहीं होता है जब कानपुर में दंगे होते हैं, बम ब्लास्ट होता है, बेरठ में दंगे होते हैं, बम ब्लास्ट होता है, सहारनपुर में दंगे होते हैं, बम ब्लास्ट होता है। तब भय का माहौल बिल्कुल नहीं होता जब अहमदाबाद हो, लातूर हो, मुंबई हो, देश के अलग अलग हिस्सों में जब बम ब्लास्ट होते थे, तब भय का माहौल नहीं था। आज जब सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास से भारत 5वें नंबर की इकोनॉमी बन चुका है, तब भय का माहौल है। आज जब मोबाइल प्रोडक्शन हम दुनिया में नंबर 2 आ चुके हैं, तब भय का माहौल आ चुका है। आज जिस तरीके से सोलर एनर्जी में हम विश्व में नंबर 1 बन रहे हैं, तब भय का माहौल आ चुका है। बात यह है कि भय का माहौल केवल इंडी गठबंधन और कांग्रेस में है, क्योंकि उनका कोई भविष्य बचा नहीं है। जनता को समझ में आ गया है, जिस तरह से ये बांटो और राज करो की राजनीति से चलते आए हैं, अंग्रेजों से लेके आज तक कांग्रेस ने केवल बांटने का काम किया है। और इस समय वो इस लेवल पर आ गए हैं कि कांग्रेस पूरे देश में मुस्लिम लीग का सब्स्टिट्यूट बन गई है, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मुस्लिम लीग का सब्स्टिट्यूट थी। क्यों? क्योंकि मुलायम सिंह जी खुद कहते थे, मुल्ला मुलायम सिंह जी और शहजादा अखिलेश टीपू बन के। अब आप देखिए, आप भाजपा नहीं, अब भाजपा वाले कांग्रेस को मुस्लिम लीग बुला रहे हैं और बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी तो ऑलरेडी मुस्लिम लीग है। अब इस तरह की भाषा का अगर प्रयोग होगा, एंड सुमंत, मैं तो फैक्चुअली ओके कौशल, लेट्स टेक इट अक्रॉस टू मिथुन, टू हाजी जी also and to Sumant. Now Sumant, Jinnah wanted to bring all Muslims together before independence, right? The Congress is wanting to do this today. There is no harm. I mean, the BJP wants to consolidate all Hindus. Likewise, the Congress wants to consolidate all the Muslims. Deepthi, it won't work, Deepthi. We saw in the Lok Sabha elections again, attempt to go the Hindu-Muslim route. It didn't work. I think the same attempt is being made in the Maharashtra elections again. I don't know at what stage who has been in power for the last 2.5, 3 years in Maharashtra? Who has been in power? You go on the basis of your track record. Instead, you go back to the good old days of Hindu-Muslim. I think that is, its use by date is gone, and it's not going to give electoral dividends to the BJP, however much they keep trying to harp on the same story. And mind you, for one in Maharashtra, one of the parties that they are taking on is
Balasaheb Thackeray's, Shiv Sena. So, Shiv Sena UBT to be called as an anti-Hindu party is going to be very difficult. Whatever they try to tar the Congress with, the Congress is in alliance with UBT Shiv Sena. So you cannot go and say they are all anti-Hindu. It won't wash. So it is a completely futile effort. But this is the playbook. I mean, there is nothing left in the bag of tricks. We have to come back to Hindu-Muslim. Otherwise, we cannot go on the campaign trail with anything else. But Sumant, if I take half of your argument, but then I'm compelled to ask one question. If you believe this is the playbook of the BJP, playbook of Yogi Adityanath, he said katenge to batenge. So why is the opposition fallen in a trap? Do they have a narrative to take on Yogi? No. Opposition is only reacting to what was said. The opposition's plank is very simple, that they are going and talking about the need to strengthen democracy. You saw what happened yesterday in the Supreme Court in the bulldozer justice judgment. So a lot, and that again reflects on Yogi Adityanath ji. That is a direct indictment of what he has sort of taken up. You remember, Deepti, that they went to town bringing bulldozers for their election meetings. Are you aware? I have seen bulldozers in Rajasthan. I've seen bulldozers even in Jammu and Kashmir. While I was there for elections, we've seen bulldozers in Kashmir also. And I must say this, that there is no chief minister named. No chief minister is named. The point is that the opposition follows the same playbook that they criticize, and that is a problem. Now, Haji ji, before I get in Mithun into this conversation, अब मुझे ये बताइए कि वक्त को लेकर आप लोग इतना डर फैलाते हैं. संविधान खतरे में है, ये कांग्रेस पार्टी कहती है. मुसलमानों के लिए कोटा चाहिए. तो योगी आदित्यनाथ ने एक चीज कह दी, कटेंगे तो बटेंगे, और आप सब लोग परेशान हो चुके हैं. आप कैसे उसको टैकल करेंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए दीप्ति जी, हम तो कह रहे हैं कि जो इनका बयान है, जो भी कटेंगे जो बटेंगे, इनका तो कंडेम जो है इन्हीं की पार्टी के लोग कर रहे हैं. जो पवार जी हैं, जो अजीत पवार जी, उन्होंने कहा कि ये नारा जो है महाराष्ट्र में नहीं चलेगा. उधर यूपी में केशव प्रसाद मौर्य जो हैं, जो वहाँ के डिप्टी सीएम है, उन्होंने कहा कि ये नारा हमारा नहीं है. तो ये तो नागपुर से आया हुआ आरएसएस का एक नारा है, जिसको लेकर ये बातें हो रही है. मगर चुनाव में मैं लगातार जो है पिछले 3 दिन से ढूंढ रहा हूँ इलेक्शन कमीशन को, इस तरीके से दूरबीन की तरह. मेरे को इलेक्शन कमीशन कहीं नजर नहीं आ रहा जहां पर बटोगी कटो की बात हो रही है. दूरबीन पर जब रिलीजन का वो चश्मा लग जाता है तो दिक्कत होती है. नहीं दीप्ति जी, देखिए दूरबीन को साफ करेंगे तो कुछ नजर आएगा. आप तो बीच में ऐसे ही टोकना टाकना बंद करके थोड़ा सा हमारी बात सुन लीजिए. मेरा काम है ये. देखिए, मेरा काम है, तस्वीरें आई, तस्वीरें कल आई, आप जिस बात की तरफ इशारा करें, और अच्छी बात है आपने आज वो बात उठाई, क्योंकि कल जब उद्धव ठाकरे को सर्च किया गया, वी विल सी इफ वी कैन प्ले आउट दोस इमेजेस आल्सो ऑन आवर स्क्रीन्स, तो he was crying hoarse. He said, देखिए हमें टारगेट किया जा रहा है, संविधान खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है. To the end of the day, Nitin Gadkari gets searched, देवेंद्र फडणवीस gets searched, एकनाथ शिंदे gets searched. So हाजी जी, देखिए ये होता है सब्र, पेशेंस. कहा जाता है ना कि पेशेंस रखना चाहिए. राजनीति तो वैसे ही पेशेंस का गेम है सर. जिस तरीके से सरकार जो है एनआरसी का बिल लेकर आई थी, उसमें हमारी नागरिकता छीनने की बात हो रही थी. और ये जो बिल है, वो अमेंडमेंट वाला जो बिल है, ये हमारी संपत्तियों को छीनने के लिए सरकार इस तरीके का बिल ला रही है. नहीं, अब आप क्या बात कर रहे हैं? अब आप कह रहे हैं एनआरसी में आप लोगों का हक छीनने की बात है, नागरिकता छीनने की बात है. नागरिकता छीनी जा रही थी, मगर अब वक्फ का जो बिल लेकर आए, ये तो हमारी वक्फ की संपत्तियों को छीनना चाहती है सरकार. हम लगातार इस बात को कह रहे हैं. मैडम, बीच में बोलने लगती है, गलत बात है. नहीं, देखिए, गलत बोलेंगे तो काउंटर किया जाएगा ना. बीजेपी के प्रवक्ता है तो बीजेपी का अपना होगा, लेकिन फैक्ट्स है सर. टोकेंगे, आप भाजपा पर कटाक्ष करिए. सवाल भी आपका, जवाब भी आपका, जवाब भी आप देंगे. तो देखिए, अगर आप फैक्ट्स पर गलत होंगे तो मैं चेक करूंगी, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप. पता ही नहीं है. ठीक है, मैडम, आपको न्यूज़ के बारे में तो पता है. हाँ, बिल्कुल, हमें नहीं पता. हम जानते हैं ना. हाँ, बिल्कुल हम करते हैं, आप जो है राजनीति करते हैं. सही बात पकड़ी आपने, राजनीति करते हैं. कौशल, ठीक है. अब के नाम पर राजनीति हो रही है. कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? मुसलमानों के नाम पर राजनीति कौन कर रहा है? बहन किया जा रहा है. मुद्दे भिन्न पार्टी हो चुकी है. भाजपा लगातार मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान, 80-20. अरे भाई, चुनाव में चुनाव की तरह चुनाव लड़िए.
आप चुनाव में जो है धर्म को लेकर क्यों आते हैं? आप क्यों प्रोपेगेंडा फैलाते हैं? आप 15 करोड़ मुसलमान से 100 करोड़ हिंदू भाइयों को डराकर वोट लेते हैं। ये तुष्टीकरण नहीं है? बताइए, मोदी जी क्या कहते हैं? कपड़ों को पहचानने की बात करते हैं। मोदी जी को शर्म आनी चाहिए। वो कहते हैं आपकी मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपकी भैंस खोल के ले जाएंगे, आपकी बेटियों को ले जाएंगे। अच्छा, अब हाजी जी, अब आप रुकिए। शर्म आनी चाहिए। देखिए, आपने राजनीति का स्तर ही खत्म कर दिया। हाजी जी, आप तानाशाही, हिटलर की आत्मा सुनिए, अब आप सुनिए प्लीज। देखिए, मैं आपके ऊपर चिल्लाना नहीं चाहती। आप स्टूडियो में इस बात का फायदा उठा रहे हैं। आपने अपनी बात रखी। अभी मिथुन सर, मिथुन हमारे एक पैनलिस्ट है मिथुन, उन्होंने अभी अपनी बात रखता हूं। ठीक है हाजी जी, बात हो गई आपकी। आपने अब जो सवाल खड़े किए उनका जवाब सुनिएगा। मिथुन still hasn't spoken. Mithun still hasn't spoken. I want to go to him. Yes, I will go to him, Mithun. But with your permission, 30 seconds only to Kaushal to reply to what Haji ji has said. Kaushal. दीप्ति, इन्होंने खुद कहा कि ये तो राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्रनीति के लिए चली है, चाहे वो 2 सीटों पे थी, चाहे वो नहीं बनी थी, तब से हमेशा उनके लिए राष्ट्रनीति सबसे इंपॉर्टेंट है। और मोदी जी का नारा क्या है? 1947 में भारत को सबसे बड़ा। अब आप सुनने की भी क्षमता रखिए ना, सुनने की भी क्षमता रखिए। दिस इज नॉट डन। बिल्कुल कौशल, दिस इज नॉट डन। दीप्ति, मोदी जी बात करते, दीप्ति जी, मोदी जी बात करते हैं 2047 में भारत कैसा होगा, विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, सबसे डेवलप राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। ये लोग अपने 5 साल गवर्नमेंट चलाने की बात करते हैं। और ये जो बटने कटने की बात कर रहे हैं, बटने कटने से इनको कष्ट क्यों हो रहा है? मैं इनसे पूछना चाहूंगा, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने जितने कैंडिडेट खड़े किए हैं, दीप्ति जरा पता कर लीजिए वहां की डेमोग्राफिक परसेंटेज क्या है। सब जगह 40% प्लस से ज्यादा मुस्लिम है। वहां पर चुन चुन के इन्होंने खड़ा किया है। तो बांटने की नीति पे तो हमेशा चले हैं। और जिनकी पार्टी के नाम में मुसलमान भरा हो, उसके नाम पे जुड़ने की बात की गई हो, वो क्या आकर के करेंगे देश की बात? हम तो सीधे कहते हैं, जिस तरीके से मुगलों ने बांटा उसी तरीके से मुस्लिम लीग ने बांटा। और जब जब बटे हैं, पहले बटे अफगानिस्तान बता, फिर बटे पाकिस्तान बता, फिर बटे बांग्लादेश बता, हम बटे कश्मीर का यह हाल हुआ। तो देखिए ना, पूरा इतिहास गवाह है कि जब जब देश का नागरिक बटा है, देश बटा है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता सब वही बात कर रहे हैं। और ये नारा कौशल देखिए, अगर आप अगर हिंदूज को एकजुट होने की कॉल दे सकते हैं, और वो कम्युनल नहीं है, और बिल्कुल नहीं है कम्युनल, वैसे ही अगर हाजी जी या कांग्रेस ये कहती है, और रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री है, वो ये सीधा कहते हैं मिथुन, that in case the Congress is voted out of power, your 4% reservation will be snatched away. It will be taken away. So Mithun, who's guilty of fear mongering right now? See, it has always been Congress that played the fear-mongering card when elections are, nearing. And this is not something new we are seeing in the country. And they have always formed alliances with, parties like, even unholy alliances with parties like SDPI. They have Muslim League that is part of UDF. So I don't know why it is so important for Congress to bring out the minority card or the, Hindu-Muslim card at the time of elections. Because they don't have any issues to showcase. They can't discuss about the real problems of the state. So that's one of the issues. And see, the slogan that BJP is raising now, it is actually a straightforward call for Hindus to be united socially and politically. What is wrong with that? When Rahul Gandhi is trying to divide Hindus on social and political basis, that's not an issue. He divides, he actually makes comments that's actually trying to divide Hindus on the basis of caste, and he will try to club them with other minority votes to secure their for political advantage. That is never an issue. But when BJP is actually making a coming forward and saying that Hindus should be united, that becomes a big issue, is it? When Imran Masood says that boti boti kar denge, that was never discussed actually. You see, the problem is when before elections, before the parliament elections, there were various slogans being raised against the Hindu community. There were slogans coming from Tamil Nadu saying that Hindu community should be eradicated because Sanatan Dharma should be eradicated because it's like malaria and dengue. So was that dividing the Hindus? Now when Congress or the India Alliance can go to the extent of making statements that is divisive, why can't the BJP or the right-wing organizations
make a call for Hindus to unite. Okay, What is wrong in that? Mithun, you raise a lot of good points. I want Suman to respond to this quickly before Singh Saab, Haji and Kaushal also come back into the conversation. Sumant. Yeah. Very quickly, Deepthi, I have no problem with the BJP making a call for Hindutvavadis to unite. Because I don't think, I'm a Hindu, I am a practicing Hindu. I don't need any certificates from anybody to say how Hindu I am. I don't subscribe to Hindutva. So I think if the BJP's ideology is rooted in Hindutva, and I think that they should be perfectly at liberty to ask Hindutvavadis to unite. What is not Hindutvavadis? abrogate Suman, the role what is of Hindutvavadis? representative of the Hindu faith. No. Whoever subscribes to the concept of Hindutva, which is central to the ideology of the BJP, calling them to unite is fair enough. That's okay. That's an ideology. It's a distinct ideology. So it's not a religion. So my point is, look, the bottom line is very simple. Hinduism is like an ocean, right? And I'm not saying it. It has been mentioned in many texts that there are multiple paths to which lead to a particular goal. And Hindutva is a ideology of the RSS and the BJP. So telling everybody, saying let's all become Hindutvavadis is the right of the BJP. You can't blame them. But No, I like Hindus this with must come Sumant. together. Yes, I like this subtle way in which Sumant has gotten this distinction, Mithun and Kaushal, about Hindutvavadis, Hindutva, Hindus, religion, BJP. लेकिन सिंह साहब, अब ये बताइए, आप योगी जी से इतना नाराज क्यों हैं? आप लोगों ने इतना पर्सनल फाइट बना दिया है, आप उनको आतंकवादी भी कहते हैं, उनके कपड़ों पर आपको दिक्कत होती है. अब हिंदूज अगर एक साथ हो जाएंगे सर, देश की रक्षा होगी, देश एक रहेगा, इसमें आपको क्या दिक्कत होनी चाहिए? देखिए, ये सच है कि वो रंगे सियार हैं. योगी शब्द मैं बार बार इसे आपको बताना चाहता हूं कि कहीं भी गोरक्ष जो पीठ है उसमें कहीं भी योगी शब्द नहीं था, जोगी था. ये अपने को योगी बन गए. अरे भैया, आपके गुरुजी ने जब वो मठाधीश हुए तो आपको युवा योगी बनाया. अब आप मठाधीश हो चुके हैं, आपकी उम्र 54 वर्ष है, आपके गुरुजी ने 48 वर्ष में आपको बना दिया. आप योगी बन गए. आपका उत्तराधिकारी योगी दूसरा कब आएगा? आप कहते हैं कि साहब हम राष्ट्र के लिए जीते हैं. अरे भाई, अच्छा इस देश को बांटने का काम तो बीजेपी ने किया. समाजवादी पार्टी में, प्रदेश के 2 टुकड़े, समाजवादी पार्टी में सर मुलायम सिंह जी के बाद अखिलेश यादव उनके उत्तराधिकारी बन जाते हैं, उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होती. एलियस अजय सिंह भी परिवारवाद का जब आरोप लगता है सर आप लोगों पर, तो वो बेवजह नहीं लगता ना सिंह साहब. छोड़िए उत्तर प्रदेश, राष्ट्र के लिए काम करिए आप. Okay, Kaushal, quickly. 10 seconds. दीप्ति, जवाब तो देना पड़ेगा. अगर कोई रंगा सियार कहेगा तो ये समाजवादी खूंखार भेड़ ये जिस तरीके से हिंदुओं को जातियों के नाम पर बांटने की कोशिश करते हैं और मुसलमानों को जोड़ते हैं, इसीलिए कॉल देना जरूरी है कि बटोगे तो कटोगे. जहां जहां बटे हैं वहां वहां कटे हैं. चाहे वो सोमनाथ को कटने की बात हो, चाहे वो मथुरा के कटने की बात हो, चाहे अयोध्या में कटने की बात हो, चाहे काशी विश्वनाथ में कटने की बात हो. देखिए, जहां जहां हिंदू बटा है वहां वहां कटा. इसमें सच्चाई है. हिस्ट्री हमें सिखाती है. और ये जो रंगे सिंगारो भेड़िए लोग जब आकर के यहां पर सियारों की बात करते हैं तो ये लोग अपराधी और आतंकवादी हैं. इन्हीं के लिए कहा जाता है ना, जिस गाड़ी में बैठा सपा का बंदा वो है गुंडा. यही कहा जाता ना, चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगी. बिल्कुल मर्यादा नहीं रह गई है. हाजी साहब, समय बिल्कुल खत्म है, नहीं तो मैं आपको आखिरी मौका देती. लेकिन देखिए, आप स्टूडियो में हैं, मैं फिर भी आपसे यही कहूंगी कि देश को एक साथ होने की बात करिए ना. कुछ अपील करना चाहेंगे आखिर 5 सेकंड्स के लिए? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि मारने और काटने की बात हमारे संविधान के अनुसार नहीं है, इसलिए जो भी 15 मिनट पुलिस हटा दीजिए. याद है ना, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए. 15 सेकंड और 5 मिनट की बात आपको याद नहीं है? 15 मिनट की बात याद है? नहीं मैडम, आप 15 मिनट की तो बात कर रही हैं, 5 मिनट की और 15 सेकंड की भी बात कर लीजिए. चलिए, वो अगर वो गलत है तो कहिए वो भी गलत है. आप नहीं कहेंगी ना, उनके बयान को कंडेम करिए. कहिए कि जिन्होंने 5 मिनट की बात करी और 15 सेकंड की बात करी वो भी गलत है. सुमन is smiling. Suman knows the answer. दोहरा जो मापदंड है ये गलत है ना. Who's playing politics?
Who wants us to be scared? I think people are smart. They will decide this. I'm thanking all of you for joining us. We'll continue to track that story after this break. Lots more.